درست تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 7۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، بلا شبہ وہ کافی خوبصورت تھی۔ روکا تھا میں نے تمہیں، روحان سے مخاطب نہیں ہونا۔ انگوٹھا اب بھی اس کے نرم ہونٹوں پر گردش کر رہا تھا۔ ادھر کی ہر امید کے برعکس ہوتا تھا یہاں سب کچھ، خاص کر شاہ نواز۔ وہ اسے برا سمجھتی تو اس کی حمایت لے لیتا، اور جب اسے نارمل سمجھتی تو سوال کر کے روح کھینچ لیتا۔ ادھر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ بس اتنا ہی بولی۔ شاہ نواز کے انگوٹھے کی حرکت رک گئی۔ تو اس کی جرأت کیسے ہوئی وہ تم سے بات کرے؟ شاہ نواز نے اچانک اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی سخت جگڑ میں پکڑ لیا۔ ادھر کی سانسیں وہیں اٹک گئیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہوتے تھے وہ اپنی بات پر زور دے سکے، اور اگر جھوٹ نکلا تو اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ جان سے مار دیجیے گا، اور یہ الفاظ بنا خوف و خطر کے بولی کہ ورنہ شاید اس کی زندگی سے زیادہ بہتر تھا۔ شاہ نواز مسکرا دیا، اس کا چہرہ جھٹکا دے کر جوڑا۔ ایسے نہیں، ایسے تو بالکل نہیں۔ وہ شاہ نے اچکا گیا۔ جاؤ اپنا بیگ پیک کرو، مجھے نکلنا ہے، اور دادی جان سے معافی مانگ لینا۔ وہ کہہ کر مڑا اور پھر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ جی؟ نہ اس نے قصور پوچھا، نہ ہی قصور جاننا چاہا۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئے تو شاہ نواز نہیں تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے وجود پر زخم 2 دن پرانے تھے۔ 2 دن سے شاہ نواز نے اسے چھوا نہیں تھا۔ وہ ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ اب نہ روتی تھی ان باتوں پر، نہ ہی اپنا بچاؤ کرتی تھی۔ الٹا جب وہ اس کے ساتھ لیٹتا اور اسے اپنی جانب نہ کھینچتا تو وہ حیرانگی کے مارے ساری رات سو نہیں پاتی تھی۔ وہ تیار ہو کر سیاہ جوڑے میں، بالوں کا آج بھی ساختہ کھلا چوڑے سر پر دوپٹہ جمائے نیچے آ گئی۔ بنا میک اپ اور کسی چیز کے بھی وہ جلتی ہوئی تھی، آفت تھی۔ وہ نیچے آئی تو دادی جان کے سامنے شاہ نواز بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، اور ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کا حسن قیامت خیز تھا۔ وہ توجہ سے اسے دیکھنے لگا، جس کی جھکی جھکی نگاہ شاہ نواز کا سارا دھیان کھینچ چکی تھی۔ دادی جان نے نخوت سے ایزا کو دیکھا۔ یہ کیا حلیہ ہے، اس طرح ایئرپورٹ پہ جاؤ گی؟ وہ ایک دم تلخی سے بولی۔ شاہ نواز کی پیشانی پہ بل سے پڑے، مگر فی الحال کچھ نہیں بولا۔ جا کر اس لباس کو بدلو۔ ہاں، تمہاری جیسی آوارہ بچہ لڑکیوں کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ مرد ان پر فدا ہو جائے۔ استغفر اللہ، زمانہ تو دیکھو کیسا آ گیا ہے۔ وہ غصے سے توبہ توبہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ڈٹنے لگی یہ بات تبدیل کرنے کے لیے۔ رک جاؤ، میرے پاس آدھا وقت نہیں ہے، جو پہن لیا سو پہن لیا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ نگاہ اسی پر تھی۔ دادی جان دیکھ رہی تھی، اور انہیں پوتے کی یہ توبہ سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ اتنا ہی لاغر سا رہتا نا، کیا ضرورت تھی اس پر اتنا دھیان دینے کی؟ وہ کھڑا ہو گیا اور عزت دادی جان کے پاؤں پکڑ کے، اب مجھے معاف کر دیں اگر میں نے آپ کے دل آزاری کی ہے تو۔ اگر اس کے لفظ پکڑ گئی، ابھی بھی یہ ڈھکول سے نہ کسی اور کے سامنے کرنا، یا اگر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ کیا تیری بدچلنی کا مجھے وہ اس کے وجود کو لفظوں سے چلنے کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ سخت بیٹھی تھی۔ ان لفظوں کی چبھن کا اظہار اور اس کی اجازت تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ہٹو یہاں سے، وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ دادی جان، شاہ نواز بیچ میں ہی بولا، آئندہ آپ ایزا کو ان لفظوں سے مت پکاریے گا۔ جب دنیا کے ہاتھ میں توڑ سکتا ہوں تو آپ کے منہ سے یہ لفظ سن کر مجھے تکلیف ہوگی۔ خلاف توقع شاہ نواز کی آواز اسے حیران کر گئی۔ اس نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا، دادی جان کا منہ سا بن گیا، پہلو بدلنے لگی۔ ایزا نے ان کے پاؤں پھر سے پکڑنا چاہے تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی، لیکن اب کچھ بولی نہیں تھی۔ شاہ نواز کو کسی کی کال آ گئی تو وہ باہر نکل گیا، اور اس کے جاتے ہی دادی جان نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ایزا کی بے ساختہ چیخ نکلی کہ وہ اس کے ہونٹوں کو بھی اپنی ہتھیلی سے دبا گئی۔ پرانے دماغ و خیال کی عورت تھی، وہ بس بہو پر ظلم کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ کیا کھول کر پلایا تو نے شاہ کو، کہ سچی باتوں کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے؟ تیری بدچلنی تو اس کے آگے کھل ہی جائے گی۔ یہ ڈرامے اور ڈھونگ میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوتا چھین لیا، کل منہی بدذات نے میرا۔ وہ اس کے بالوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ ایزا کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے، اور ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ ایزا بی بی، شاہ صاحب بلا رہے ہیں، وہ بولی، جبکہ دادی جان نے اس کے بال اچھے خاصے کھینچے تھے کہ اس کے بال اس کی مٹھی میں اتر گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو کی ایک چھڑی بن گئی۔
उन्होंने लात मार के ईज़ा को अपने तख्त पर से हटाया। दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से। और वापस आने पर मुझे खुशखबरी ना मिली तो ये जो हमायत ले रहा है ना, नरगिस बेगम का पोता है, वो फ़ख्र से बोली। हड्डी पर से चमड़ा अलग कर दूंगी। वो बोली। ईज़ा पीछे कदम लेने लगी और मुलाज़िम भी खामोश खड़ी रही थी। उस पर होने वाला जुल्म ये पहला तो नहीं था। दादी जान उसके साथ यही सलूक करती थी। शाहनवाज जब जब उसे जूते की नोक पर रखते तो वो ईज़ा के साथ नॉर्मल रहती, वरना उन्हें ऐसे ही दौड़े पड़ते थे। वो अपने चेहरे पर पहले आंसू साफ करती दुपट्टे को अच्छे से लिए बाहर आ गई। शाहनवाज गाड़ी में सवार था, वही ड्राइवर था। ईज़ा का दम सा घुटने लगा। वो उसे देख रहा था तिरछी निगाहों से। ईज़ा का बस नहीं चला कहीं गुम हो जाए, गायब हो जाए। और जैसे ही उसने ईज़ा को शीशे में देख कर आंख मारी, ईज़ा के हाथ पांव फूल गए। उसने शाहनवाज को देखा। वो एतबार बेतबारी के बीच था। वो दादी जान के खिलाफ पहली बार बोल रहा था, क्योंकि 6 माह में एक बार भी दादी जान के खिलाफ बात करते सुना नहीं था। उल्टा उसे इग्नोर करना आम बात थी। गाड़ी रोको, शाहनवाज ने अचानक कहा तो ज़रा ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और शाहनवाज बाहर निकल गया। ईज़ा बेचैन हो गई। बाहर एक गाड़ी रुकी थी। उसमें से निकलने वाले शख्स से वो मिल रहा था और अंदर ईज़ा की हिम्मत जवाब दे गई। वो शिकायत लगाती हुई तो कहीं खुद बुरी ना बन जाती, कहीं वो उसी के बारे में ये ना सोच लेता कि उसी में बुराई है जो हर मर्द उसके साथ ऐसा कर रहा है। ड्राइवर टिटाई पे उतरा हुआ था। वो दांत नकोसता ईज़ा को देख रहा था। ईज़ा ने मुँह छुपा लिया। ईज़ा के हाथ पांव कांपने लगे थे। आंखें आंसुओं से भर गईं और ड्राइवर अब सीटी पे जा रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा तो ड्राइवर की चोंच बंद हुई और ईज़ा कुछ भी सोचे समझे बिना उसके नज़दीक हो गई। शाहनवाज ने उसकी जानिब देखा। ईज़ा ने कांपता हाथ उसके बाजू में डाला और उसके बाजू पर सर रख लिया। इस तरह वो छुप गई थी ड्राइवर से। उसने टांगें समेट ली, बोली कुछ भी नहीं थी, बस बच्चों की तरह उसी के पहलू में छुपना चाह रही थी। शाहनवाज ने उसकी सरकत को देखा और फिर एक नज़र आगे बैठे ड्राइवर को, और अचानक ही उसकी गर्दन पीछे से जकड़ी। गाड़ी रोको। ईज़ा सीधी हुई। गाड़ी रोको। वो दौड़ा। ईज़ा दूर हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। शाहनवाज बाहर निकला और उसने बाहर निकल ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और उल्टे हाथ के दो थप्पड़ खींच खींच कर उसके मुंह पर बरसा दिए। ईज़ा मुंह पर हाथ रख गई। क्या उसे इल्म हो गया था जो वो कह नहीं पा रही थी? ईज़ा भी हैरान थी। कल से अब तक शाहनवाज उसे एतबार की कड़ी में बेध्यानी में बांधता जा रहा था। उसने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा था। उस पर गुस्सा निकाल कर उसने ड्राइवर को धकेला। साहब, मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वो मुतवातिर एक ही सवाल करता अपना बचाव कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ईज़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाई मंजर देख रही थी। क्या वो इतनी हैसियत रखती थी कि वो बिन कहे समझ जाता? आइंदा मेरे इर्द गिर्द भी नजर ना आना। उसकी नाक से बहते खून को इग्नोर करते हुए उसे नौकरी से निकालता, बस इतना ही बोला और ड्राइवर को रोड पर ही फेंक कर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शाहनवाज सिकंदर पहली बार गाड़ी प्रोटोकॉल के बिना चला रहा था। ना ही वो चलाता था, ना उसे ज़रूरत पड़ती थी। इधर सादे थी। शाहनवाज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उससे कोई बात नहीं की थी और एयरपोर्ट की जाने बढ़ गया। आओ आओ उमर बेटा, कैसे हो? ठीक से नींद आई? मच्छरों ने काटा तो नहीं भई? तुम्हारे लिए स्पेशल मच्छरों को मारने वाली दवा होती है ना, वो लगाई थी। क्या नाश्ता? इतने सवाल क्यों कर रही हैं आप? वो बेजारियत से बोला। ताई का मुंह सा उतरा। उमर भाई, आप अम्मी से बदतमीजी करते हैं हर वक्त। सोहा जरा गुस्से से बोली और उमर ने सोहा को कभी वैल्यू नहीं दी थी। मुझे नाश्ता चाहिए, वो बस इतना ही बोला। सोहा बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हो गई। हाँ,
अरे आओ नजमा, कहाँ मर गई? नाश्ता बना दो उमर को, वो बोली। आप बना कर दें। उमर नहीं जानता था ये नजमा कौन है, बल्कि इस घर में वो सिर्फ ताई, अपने बाप और सोहार और रमजान चचा को भी थोड़ा बहुत जानता था, और बदर को तो बस देखा ही था। हाँ? ताई हैरान हुई। हाँ, आपके पास हाथ नहीं है? इन्हीं हाथों में तो बड़ा हुआ हूँ मैं। फोन के बाद उनके मुंह पर मारता फोन से बोला, मैं बना देती हूँ। नजमा परेशान से बोली, ताई जान को तो अरसा गुजरा किचन में नहीं गई थी। नो थैंक्स, सर्द लहजे में बोला। मुझे भूख लगी, जल्दी करें। वो पाँव झुलाता मोबाइल निकाल गया। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो मुस्कुरा कर उठ के जबकि सोहा उमर को देखने लगी। देखने में वो हमेशा से परफेक्ट था, बदर से भी ज़्यादा हसीन रंगत थी। मालूम नहीं उनकी रंगत उनकी माँ पे क्यों गई थी। सोहा और अरहम की, वरना उमर भी तो उसी की बाप की औलाद थी। ऐसे सोने की तरह चमक दमक रखता था। सोहा मुँह बनाने लगी और ताई ने तब तक नजमा से नाश्ता बनवा लिया। उमर को खुशी से मिल्क शेक और ब्रेड स्लाइस लेने लगा और अचानक के सामने से एक आंटी आ गई। उसका ध्यान अपने खाने की जानिब था। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने ताई को सलाम किया तो फिर तुम फिर आ गई। कहा तो है हमारी बच्ची छोटी है भाई, नहीं करनी कोई शादी वादी। ताई जरा गुस्से से बोली। मेरा बेटा भी आया है, आप एक बार मिल लें मेरे बेटे से, आपकी बेटी को बहुत इज्जत से रखेगा, उन्होंने प्यार से कहा। और एक ऊपरू लड़का अंदर दाखिल हुआ तो सोहा तो दिल थाम गई। देखो भला सास की किस्मत थी क्या था सूफिया सनम, जो माँ के कमरे से अभी निकली थी। ठीक है, हैरान हुई और कहीं ना कहीं जेलसी भी हुई थी सास से, जबकि सरवत भी मुंह बना गई। उसकी भी तो दो बच्चियां थी। अब इस सास में कौन सा लाल लगे थे, जबकि सास अपने आखिरी पेपर देने बदर के साथ गई हुई थी। नजमा भी चुप खड़ी थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है बहन? हमारे यहाँ लड़के मुंह उठाकर नहीं आते, निकलो भाई इसको बाहर। ताई गुस्से से बोली और उमर को देखा जो कि लातावली बना नाश्ता कर रहा था। उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाके वो खुद ही उठी, जबकि वो खातून नजमा के पास आ गई। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, आपका इख्तियार है, आप हाँ कह दें, वो बोली, जबकि नजमा के चेहरे के रंग से उठ गए। सो ज़रा अपने बाप को फ़ोन घुमाओ, ये लोग क्यों नहीं मानेंगे। ताई भड़क कर वो उठी और वो लड़का अभी कुछ कहता कि बदर और सास भी आ गए। सास उन लोगों को घर में देखकर कुछ हैरान हुई और जल्दी से ऊपर चली गई। बदर ने सवालिया निगाह उस लड़के पर उठाई जो उनके घर में खड़ा था। ये सास के भाई है ना? वो खातून आखिरी बार किस्मत अ- आजमाई हुई बदर के पास आई। बेटा, मैं बहुत दिनों से आपकी अम्मी ताई चाची सबसे बात कर रही हूँ। मुझे आपकी बहन सास बहुत पसंद है, और मैं क्या मेरा बेटा भी बहुत खुश रखेगा उन्हें। आप एक बार मेरे बेटे से मिलने, वो बोली तो बदर हैरान हुआ। ये बात नजमा ने की नहीं थी उससे, और सास दिल थामे सब सुन रही थी। अच्छा, लेकिन आंटी हमारे यहाँ अजनबी लड़के घरों में नहीं आते, बदर बोला। अच्छा अच्छा बेटा, सुबह बेटा आप गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। और जल्दी से उनके घर के माहौल को का एहतराम करती बोली। बदर को तो बहुत अच्छी लगी थी जो चीज़ों को वैल्यू दे रही थी, और उन्होंने 2-3 बार आने का कहा था। बदर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं इनकार कर चुकी हूँ, बाहर निकालो इस औरत को। जान बोली तो बदर ने सख्त नजरों से उसे देखा। क्यों इनकार किया? उसके सवाल पे उन खातून की जान में जाने, और ताई ने गुस्से से उसे देखा। सास मेरी बहन है और उसका पूरा इख्तियार मेरे पास है, सुकून से बोला। अब गूंगी का गुड़ खा लेना, जुबान तो तुम्हारी हिलेगी नहीं। मन चाहे जो कर रहा है बेटा। अरे मनहूस, तुझे कहा है अपने बाप को बुला। ताई चिल्लाई जबकि बदर ने सिर झटका। आप मेरे साथ आए। वो उन्हें बाहर ले आया। बेटा मैं चाहती हूँ आपकी बहन। आंटी आप मुझे बहुत सोचे हुए खातून लगी हैं, मैं यकीनन इस बारे में सोचूंगा। वो मुस्कुराया जबकि वो भी मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने का। इज्जत कहाँ है? आपने तो सारी असलियत ही दिखा दी। वो तंजिया हंसा। जाने दो बेटा, मुझे सास को लेकर जाना है, बाकियों से मुझे गर्ज नहीं। वो मुस्कुराए तो बदर भी मुस्कुराया। मैं कल फिर आऊंगी, वो कहकर चली गई जबकि बदर ने सर हिलाया और अंदर आ गया। ये कौन सा तरीका है बड़ों को बेइज्जत करने का?
ताई पुन भुना उठी। बदर नजमा ने कुछ बोलना चाहा। अम्मी मैं लड़के की मालूमात निकलवा दूँ। हम सास की शादी कर देंगे, इस दोजक से बच जाएंगे। लो, ये घर दोजक बन गया। ताई किच्ची को बुखार शुरू हो चुकी थी। बदर ने कान भी नहीं धरे और चला गया। ताई ने नजमा को ताने मारना शुरू कर दिए। सास मुंतजिर थी सूफिया और सनम की, मगर दोनों ही नहीं आई और दूसरी तरफ सोहा बेचैन होगी। सास इतने अमीर लोगों में जाती उसे चैन कैसे आता, जबकि उमर तो कब का वहां से जा चुका था। किससे पूछकर तुमने हाँ की है? बदर को कटघरे में खड़ा कर लिया गया। अभी तक तो नहीं की, लेकिन कर दूंगा। तुम्हारी बड़ी उम्र के तायाजान भर के, सास बहन है मेरी, मैं उसके बारे में सोचने की और दुरुस्त फैसला लेने का पूरा इख्तियार रखता हूँ। बस वो दाढ़े पहले अपने कदमों पर खड़े हो, उसके बाद इस मुंह को खोला मेरे सामने। क्या औकात है तेरी कि अपनी बहन को अपनी खुशी से एक चादर तक नहीं दे सकता, शादी के फैसले करेगा। वो उसको बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और वो ही हो रहा था जैसे पूरे घर की दिल की आवाज़ तायाजान बोल रहे थे। सास मुंह पर हाथ रख के रो रही थी। उसकी वजह से पूरे घर में उसका भाई बेइज्जत हो रहा था। वो ना जिद करता, उधर सास को शादी की जल्दी थी, ना उम्र निकले जा रही थी। तायाजान मेरी बहन दो दाने पे अपने पैसे के डाले हैं तूने उसके हलक में, जो फैसला करने चला है। निकल इस घर से और एक गंद भी लेकर जा, फिर देखता हूँ कौन तेरी बहन से शादी करेगा। उन्होंने उसे धकेला तो एक बदर एकदम दूर हुआ। औकात देखो इसकी और बातें सुनो। वो हंसी है। अगर दोबारा वो औरतें इस घर में दिखी तो थप्पड़ों से मुंह सजा दूंगा। वो बोले, मैं सास की शादी वहीं करूंगा। बदर हिम्मत करके जिद पर अड़ा रहा। जबकि तायाजान ने जूती उतारी और उस पर हाथ उठाते कि सास दौड़ के भाई के आगे आ गई। तायाजान, आप जो कहेंगे वो करेंगे हम। पागल हो गई हो? बदर दहाड़ा दहाड़ उठा। ये ड्रामा क्या क्यारी जिन ये ड्रामा क्या जिंदगी भर चलता? वो लोग इसी तरह जिंदगी गुजारते। अरे तुम तो हटो। सास को धकेल कर तायाजान ने बस उसका गिरेबान पकड़ा, जबकि उमर ही शोर शराबा सुन के अभी निकला था कमरे से, और वही बदरनामा कुछ कुछ जानता था। वो इस बारे में बदर एक मजलूम लड़का और उसका बाप एक जला ताया वो सेब खाते हुए मंजर सुकून से देख रहा था। ताया जान, अपनी बहन की शादी का हक रखता हूँ, तो करना, जा यहाँ से। वो बढ़ के बदर उन्हें घूरने लगा। जा बे जा, तू यहाँ से निकल इस घर से। भाई साहब, हम तो आपके फैसले पर चलते हैं। आप बड़े हैं, बच्चा है ये। बस गूंगी औरत, जुबान खुल गई अब तेरी। मैंने कर दिया आज तेरी बेटी का रिश्ता उमर ख़याम से, और जिसमें इस फैसले के खिलाफ जाने की ज़रूरत है वो आए मेरे सामने। वो बोले। इस बीच अपने नाम की बाज़ पर उमर ने आईब्रो झुकाकर बाप को देखा। जबकि दादाजी ने कहा तो दिया, अब उमर का ही डर था। बीच में कूद गया तो कुछ नहीं छोड़ता उनका। क्या इससे पहले बदल चीखता, आपका दिमाग ठीक है? आपकी शराबी बेटी और मेरी बहन का जोड़ बनता भी है? बदर दिल मिला उठा। हाँ बनता है। तेरी बहन में सिर खराब नहीं लगा। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं ये होने नहीं दूंगा। पागल हैं आप। उमर को लगा उसे बोलने की जरूरत नहीं, वो भी सिर्फ तमाशा देख रहा था। भाई साहब, एक बच्ची आपकी बच्ची है, कुछ अच्छा सोच। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे भाई ने सोचा। बुराई क्या है उम्र में? लाखों में खड़ा होगा, चांद की तरह चमकेगा। ताई भी बोली। और अगर उस खातून को इतनी हमारे यहाँ रिश्तेदारी की पड़ी है, सनम की कर दो हाँ। वो बोली तो सरवा चच्ची को भी सुकून मिला। मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप बहुत अजीम हैं। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दें। बदताड़ा, तुम इस घर से निकलोगे मेरे फैसले के खिलाफ गए तो, और तुम शादी की तैयारियां करो। उमर ख़याम और सास की शादी होगी, वो भी बहुत जल्द। वाह की। और नजमा बदर समेत सास के दिल को भी इस आवाज़ ने भी चैन दिया था। अब ताई को तो क्या कोई भी उसके आगे पर नहीं मार सकता था। उमर, तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। वो बात अभी हो जाए तो बेहतर है। मेरे कमरे में है, वरना मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। वो बोला और चला गया। सास ने माँ को देखा।
امی نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بدن سے سینے سے لگا لے جبکہ نجمہ سب کی جانب دیکھنے لگی۔ پرسکون مسکراہٹ سب کے لبوں پر تھی اور وہ بے بس کری تھی۔ میری زندگی کا فیصلہ لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تمہارا باپ، وہ بولے۔ اچھا بس یہ ڈھونگ جانا بند کریں، وہ چڑ گیا۔ لگتا ہے تمہارا انٹرسٹ اس شاعری میں رہا نہیں۔ اشفاق صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ عمر نے خواہ جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ بالکل نہیں، میں صرف تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی کرو بس۔ مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بیٹے، تمہیں کہا کس نے ہے کہ اس بھکارن کے ساتھ ساری زندگی بندھے رہو؟ جہاں دل کرے وہاں جاؤ، جس پر دل آئے اسے استعمال کرو۔ آپ مولانا ہیں، وہ طنزیہ ہنسا۔ اشفاق صاحب سنجیدہ ہو گئے۔ تمہاری بکواس ہی مجھے تم سے بات کرنے سے روکتی ہے۔ تو بات کرتے ہی کیوں ہے؟ خیر، تمہیں تمہاری زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ تمہیں اگر نہیں چاہیے تو میں انکار کر دیتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں، وہ بولے اور جانے لگے۔ مجھے شادی ہوتے ہی میری مطلب کی چیز چاہیے، وہ بولا۔ تو اشفاق صاحب خوش ہو گئے، اس کا شانہ تھپتھپا کر باہر آ گئے۔ اب مزید چوڑے ہو گئے تھے۔ بدر کو یقین تھا وہ بے عزت ہوں گے، مگر ان کی خوشی نے اسے حیران کر دیا۔ اور اس ساز اور عمر کی شادی کی تیاری، اور تیاری بھی کیا، 2 جوڑے بناؤ اور نکاح کی تاریخ یہی کوئی اگلے ہفتے کی رکھ لو، وہ بولے تو ساس کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی، جبکہ اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ سب وہاں سے چلے گئے اور ساس پھٹ پھٹ کر رو دی۔ مجھے نہیں کرنی امی پلیز، وہ ایک سانس بول رہی تھی۔ نجمہ بھی اس کے ساتھ بے بسی سے رو دی، جبکہ بدر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا، اور جیسے اس کے دماغ نے بڑی اجلت میں حرکت کی تھی۔ ہوتا ہے کہ کمرے میں بنا اجازت کے گھسا۔ اگر عمر اور ساس کی شادی ہوگی تو سوہا اور میری شادی کی بھی تیاریاں کریں۔ اور وہ کچھ بولتی کہ گرایا، یہ میرا فیصلہ، میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ وہ جتا کر چلا گیا اور تائے جان نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں، کرتا ورتا تو کچھ ہے نہیں۔ تائے کو اختلاف ہوا، کچھ نہیں ہوتا، میں اسے رکھ لوں گا 500 روپے پر، وہ کہہ کر لیٹ گئی، جبکہ تائی جان بے چین ہو گئی۔ بیٹی کے مستقبل کی فکر تھی انہیں۔